Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. Welcome to English 9 and welcome to Chase Academy. I'm your instructor, Zia Hamid. My dear learners, today we are going to talk about our very first lecture of Unit 5 according to the book. Anyway, this is our uh, actually lecture 1, right? So, in this lecture, we are going to deal with the grammar students learning outcome. This is related to grammar. The SLO says recognize and use. हमने पहचानना है और फिर इस्तेमाल करना है, यूज करना है correlative conjunctions को, including pairs such as we know correlative conjunctions pairs में इस्तेमाल होते हैं. Correlative conjunction is the third and final type of conjunctions. We have coordinating conjunctions और शाबाश कौन बताएगा? Raise your hands. Yes, little stars. How many types of conjunctions are there? Coordinating, subordinating, And correlative. Okay. correlative. This SLO says that we are working with correlative conjunctions, including pairs such as both and, either or, neither nor, not but, and not only but also. Not but एक पेयर है और not only but also. ये दो पेयर्स बल्कि मतलब ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है क्योंकि ये एक साथ इस्तेमाल होता है. दिस इज अ पेयर ऑफ टू conjunctions but they are acting as one. All right, so conjunctions, let us talk about it. Vertical linkage है आपका. All right, we know that conjunction are words that are joiners. वो हमारी बात को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है. दे आर लिंकर्स, दे आर जॉइनर्स. इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच एंड इट टॉक्स अबाउट जॉइनिंग, ताकि आप अपने सेंटेंसेस को एफिशिएंट बना सकें. ज्यादा सेंटेंसेस की बजाय आप कम सेंटेंसेस में या एक सेंटेंस में वो सारी बात कर सकें. ऑलराइट, here we have some brainstorming questions for you. These are easy conjunction words that you want to place over here in the blanks. Number one is my car has a radio, but, or, and a CD player. Yes, the Renaissance, they have raised their hand. And Kingway. Yes. And क्योंकि हम जो दो नाउन्स की यहां पे बात कर रहे हैं, this is the subject has a radio and a CD player. They are both of equal rank. दोनों equal rank के जब हमारे पास nouns होते हैं तो हम and इस्तेमाल करते हैं. Alright, अगर हम and use ना करते, dear learners, उधर ही रहने दें. My car has a radio, my car has a CD player. दो sentences बन जाते, equal rank के हैं, दोनों independent हैं. तो हमने उसे शॉर्ट किया, कंसाइज किया यूजिंग कंजंक्शन. हमने उन दो चीजों को, उन दो नाउन्स को कनेक्ट कर दिया जो कि एक जैसे थे. माय कार हैज अ रेडियो एंड अ सीडी प्लेयर. इससे हमारा सेंटेंस भी शॉर्ट हो गया, एक सेंटेंस हमारा एलिमिनेट हो गया और हमने उसको एक के ही अंदर इनकॉर्पोरेट करके बाय यूजिंग द कंजंक्शन. नेक्स्ट वन इज Abiha refuses to eat spicy food, nor will she try anything too sour. Yes. Nor. Yes. The option is already there. The option is already given over there. Nor. अच्छा. Nor is like not, but ये negation के लिए है. Abiha refuses to eat spicy food, nor will she try anything too sour. यानी ये भी नहीं and ये भी नहीं. दोनों के लिए we are using nor. All right. Next one. Kareem wanted to drive to Karachi. Bilal insisted that they fly. Yes. Sir, but आएगा. Central. All right. Shabash.
What about others? Yes. But yes, क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है. Kareem wanted to drive to Karachi. Bilal insisted that they fly. दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, ऑपोजिशन आ गई है, तजाद है. तो क्या हम कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं? बट. ऑलराइट. Okay, I am afraid of heights, blank. I appreciate the view from the top of this building. Yes. What about Sikandar? Okay. Al Said. Yes, Al Said को unmute कीजिए. जी. Yet. I am afraid of heights. मुझे हाइट से यानी ऊंची जगह से, ऊंचाई से डर लगता है. I appreciate the view from the top of this building. लेकिन फिर भी अभी वो वहां पर मौजूद है, उसे डर नहीं लग रहा, वो अप्रिशिएट कर रहा है, अगरचे उसे डर लगता है. ठीक है, इसके बावजूद के उसे ऊंची जगह से, हाइट से डर लगता है, येट फिर भी वो कहता है आई अप्रिशिएट द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग. यहां पे हम एंड नहीं लगाएंगे. क्यों? क्योंकि इक्वल रैंक की बात नहीं हो रही. यहां पे हम नॉर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम निगेट नहीं कर रहे. यहां पे हम येट इस्तेमाल करेंगे. एंड व्हाट इज येट? व्हाट टाइप ऑफ कंजंक्शन इज येट? जरा नसा. यस. Subordinating conjunctions. Coordinating, yes. If you remember the mnemonic, fanboys, for and nor, but or, yet, so. So उसमें जो Y है, that stands for yet. And lastly, I have to be on time, blank, my boss will be annoyed if I am late. G. The Central School, Shahjahan campus. सर 4 आएगा. 4. Okay. Anyone else? सर आप हमें अनम्यूट कर दिया करें प्लीज. जी, आप जब हैंड रेज करते हैं तब आपको अनम्यूट कर दिया जाता है. शाबाश. हैंड लो कर लें आप. थैंक यू. ओके. Who else? Yes, Al Said Education. एंड आएगा सर. And why? वो कहता है I have to be on time. मुझे वक्त पर पहुंचना है, वक्त पर वहां होना है. My boss will be annoyed. मेरा बॉस गुस्सा करेगा. हाँ, यस, गुस्सा करेगा, इरिटेट होगा, annoyed होगा अगर मैं लेट पहुंचूंगा या मैं लेट होऊंगा. तो एंड कैसे आएगा बताएं? पहले सेंटेंस को पढ़ें. शाबाश. सेंटेंस को समझें. मैंने ट्रांसलेट कर दिया है आपके लिए. जी, द सेंट्रल फातिमा कैंपस. जी, वन स्टूडेंट एट अ टाइम प्लीज. 4. Yes, 4. That's the right option. Why? वो रीजन दे रहा है, मुझे टाइम पर पहुंचना है. क्यों? For my boss will be annoyed if I'm late. तो ये for जो है ये रीजन देने के लिए, वजह बताने के लिए कि क्यों टाइम पर पहुंचना है. तो बिकॉज के साथ इसको इंटरचेंज आप कर सकते हैं. All right. Now read the following sentences here. Now most of conjunctions are being repeated. हमने देखा conjunctions are connecting other things together. Coordinating conjunction में equal rank की चीजें connect होती हैं, negate होती हैं, वो equal होती हैं. और इसके अलावा
सबऑर्डिनेटिंग में हम उसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे while, आफ्टर, unless, until, whether. तो ये सारी meanwhile, whereas, ये सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट जरा ज्यादा है और कोरिलेटिव की भी ज्यादा है, सबसे कम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उतने ही हैं जितना निमोनिक है फैन बॉयज। फॉर एंड नॉर बट और येट सो कितने हुए? 7, right? 7 coordinating conjunctions, lot of subordinating conjunctions, and pair में correlative conjunctions. Now, read the following sentences. God made the country and man made the town. Can you spot the conjunction? Let's hear from the Renaissance. Yes. जी अस्मा आप बताएं. Is your mic working? And sorry, the and is a coordinating conjunction. Yes. And is which type of conjunction? Yes, you are muted from our side. Coordinating. Coordinating, yes. Who else like to answer that? Little stars. Okay. Yes, little stars. What kind of conjunction is it? Coordinating. Yes, coordinating conjunction, because these are of the same category, the country and the town. So, this is coordinating conjunction. Second one, our hoard is little, but our hearts are great. Yes, the Central School Shahjahan. But Yes, but is our coordinating conjunction. She must weep or she will die. Okay. Sir, but Yes. All right. Number 4. Number 3. Central executive. or Yes. Or. देखें दोनों में या ये होगा वरना ये हो जाएगा. तो इसमें आप देखें or is like a choice. 2 and 2 make 4. Very easy. We know this. Farhan School. In green jerseys. Yes. Boys. What do you think? And is the conjunction over here. Coordinating conjunction. 2 and 2 make 4. She must weep or she will die. Our hoard is little, but our hearts are great. God made the country and man made the town. All right. So this was a little and quick revision. A conjunction is a word which merely joins together sentences and sometimes words. Sentences भी जब 2-3 हो, अगर आपने उसे connect करके concise करना है तो आप conjunctions को इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल. Now lower down your hands please. Ali is a good bowler and Furqan is a good bowler. Okay. Ali is a good bowler and Furqan is a good bowler. Lengthy sentence है. हमें precision चाहिए, हमें short करना है इसे, हमें conjunctions को इस्तेमाल करना है. Ali and Furqan are good bowlers. Even though conjunctions is used here. अब देखें, Ali is a good bowler. इसको हटा दें आप. Full stop. Furqan is a good bowler. Full stop. हम कह सकते हैं Ali and Furqan. हमने दोनों को and के साथ कनेक्ट कर दिया. दोनों nouns हैं, दोनों प्रॉपर nouns हैं. and के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कनेक्ट कर दिया. अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आर, क्योंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं, अली की भी और फुरकान की भी. इज नहीं आएगा क्योंकि हम एक की बात नहीं कर रहे, हम दोनों की बात कर रहे हैं. आर गुड बॉलर्स. पहले यहां पे क्या था? अली इज अ गुड बॉलर एंड फुरकान इज अ गुड बॉलर. सिंगल था बॉलर, बट यहां दोनों को रेफर करने के लिए हमने
प्लूरल इस्तेमाल करना है, एस लगाना है ताकि उसको उसके साथ कनेक्ट किया जा सके। सब्जेक्ट और वर्ब हमारे एग्री करने चाहिए आपस में, एंड दैट्स हाउ वी यूज इट। यहां तक आपको समझ आ चुकी है? डू यू गेट इट? राइट, ओके। नाउ some conjunctions are used in pairs, they are called correlative conjunctions, या आप इसे correlatives भी कह सकते हैं। On the screen please. Okay, now here are some correlative conjunctions. either or किसके लिए इस्तेमाल होता है? चॉइस के लिए, चॉइस देने के लिए। either take it or leave it, या ये ले लो या छोड़ दो। either or पेयर में इस्तेमाल होगा। either पहले आएगा क्योंकि either पहले है पेयर में, it's the first thing in the pair, and then आप और इस्तेमाल करेंगे। either take it, या ये ले लो, और leave it, या इसे छोड़ दो। so either or किस तरह? इसी ऑर्डर में वर्क करेंगे। ये पेयर है, पेयर में वर्क करेगा और इसी ऑर्डर में वर्क करेगा। नेक्स्ट वन इज neither nor, ये है दोनों चीजों को निगेट करने के लिए कि ये भी नहीं और वो भी नहीं। इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल, ये इस्तेमाल करने की भी चीज नहीं है, नाइदर इट इज ऑर्नामेंटल। सो ये भी नहीं है यानी यूजफुल भी नहीं है, ऑर्नामेंटल भी नहीं है, इसका मतलब है दोनों नहीं है। अगर मैं कहूं आई नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी, इसका मतलब है मुझे कॉफी भी पसंद नहीं और टी भी पसंद नहीं। दोनों जब चीजें, दोनों ऑप्शंस जब आप निगेट करेंगे, उसकी नफी करेंगे, तो दोनों के लिए क्या होगा? नाइदर नॉर। देखें दोनों एन से स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह नॉट एन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपकी इंडिकेशन है, आपको मालूम होना चाहिए नाइदर नॉर दोनों नॉट की तरह इस्तेमाल होते हैं। बोथ एंड, जब आपके पास दो चीजें हो डियर लर्नर्स, जब आपके पास दो चीजें हो, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस आपने देनी है, तो आप बोथ एंड इस्तेमाल करेंगे। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, बोथ एंड। क्या हम ये कह सकते हैं वी लव एंड ऑनर हिम? वी लव एंड ऑनर हिम, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। ऐसे ही है, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, अब दोनों के ऊपर इक्वल एम्फसिस है, दोनों के ऊपर इक्वल जोर दिया गया है, इसलिए हम बोथ एंड इस्तेमाल करते हैं। बोथ एंड, दे वर्क लाइक अ पेयर। नेक्स्ट वन इज वेदर और। शाबाश। आई डोंट केयर whether you go or stay. Yes. either और क्यों इस्तेमाल करते थे हम? शाबाश, चॉइस देने के लिए, टू गिव अ चॉइस। ठीक है, लेकिन वेदर और हम दोनों ऑप्शंस को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बुनियादी फर्क है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आइदर और वेदर और। ओके, I don't care whether you go or stay. मुझे परवाह नहीं है चाहे तुम रुक जाओ या रुको। तो दोनों ऑप्शन है, एक है जाना, एक है रुकना। स्टे करना, एक है जाना। दोनों के लिए I don't care whether you go or stay. हम ये नहीं कहेंगे I don't care either you go or stay, क्योंकि हम चॉइस नहीं दे रहे, बल्कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम चॉइस नहीं दे रहे, हम ऑप्शंस को बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए हम वेदर और इस्तेमाल करेंगे। All right. When conjunctions are used, they are used as correlatives. Each of the correlated words should be placed immediately before the words to be connected. जब हम correlative conjunctions को पेयर में इस्तेमाल करेंगे, सवाल ये है कि कहां पे इस्तेमाल करना है exactly. Let's look at this. He visited not only Quetta but also Murray. All right? Yes, this was the mistake. Quetta क्योंकि proper noun है, you have to capitalize it. He visited not only Quetta but also Murray.
दिस इज द राइट वे। नीचे देखें, he not only visited Quetta but also Murray. This is wrong, क्योंकि हमने हमारे जो correlative conjunctions हैं not only but also, ये हमारा एक पेयर है correlative conjunction का, हमने अपने noun से पहले इस्तेमाल करना है इसे, noun से पहले। यहां पे करेक्टली इस्तेमाल किया है। यहां पे देखें, he not only visited Quetta but also Murray, यहां पे हमने not only पहले इस्तेमाल किया, ये गलत हो गया, क्योंकि हमने correlative conjunctions को noun से पहले इस्तेमाल करना है। According to the rule, when conjunctions are used as correlatives, each of the correlated words should be placed immediately before the words to be connected. हम यहां पे कौन से words को connect करना चाह रहे हैं? शाबाश, कौन से वर्ड्स को कनेक्ट करना चाह रहे हैं? यस, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सर इसकी एग्जांपल हम किसी और तरीके भी तो दे सकते हैं, लाइक वी विजिट नॉट ओनली मुल्तान, हम एक्स्ट्रा हम दे सकते हैं, वी Yes. नॉट ओनली दे सकते हैं। यस, हम कह सकते हैं ही विजिटेड नॉट ओनली A but also B, कोई भी जगह। He wanted not only this but also this. He was not only intelligent but also hardworking. ठीक है, आप कह सकते हैं he is not only smart but also hardworking. देखें कि वो सिर्फ स्मार्ट नहीं था, बल्कि स्मार्ट नहीं है बल्कि मेहनती भी है, हार्ड वर्किंग भी है। ये दो चीजें, स्मार्ट और हार्ड वर्किंग, दोनों क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं, दोनों एडजेक्टिव्स हैं, और दोनों को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारे जो कोरिलेटिव पेयर्स हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वो इन वर्ड से इमीडिएटली पहले आएंगे। ठीक है, इमीडिएटली पहले, फौरी तौर पर जो पहले उसको हमने यूज करना है। हमने इस तरह इस्तेमाल नहीं करना कि हम पहले अपने कोरिलेटिव कंजंक्शन को इस्तेमाल करें और बाद में अपने कनेक्ट करने वाले वर्ड को इस्तेमाल करें। दिस इज रॉन्ग। ऑलराइट, सो ये हमारी प्लेसमेंट का रूल है। वेयर डू वी पोजीशन आवर कोरिलेटिव कंजंक्शंस? ओके, correlative conjunctions, they are working in pair and they are connecting elements in a sentence. But also क्या इंडिकेट करता है? क्यों यूज करते हैं हम ये पेयर? यूज टू इंडिकेट दैट टू एलिमेंट्स आर टू बी इंक्लूडेड, यानी दोनों चीजें इंक्लूड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस एग्जाम्पल, empowered women not only play a key role in making positive changes but also contribute actively to their communities and the overall growth of a nation. All right, but also, not only भी इस्तेमाल किया हमने and but also भी, के empowered women not only play a key role but also contribute actively. तो दोनों को हमने यहां पे यूज किया। नेक्स्ट अप, either or. It presents a choice between two elements. Look at here. Either I drive to the airport or I get a taxi. दो choices है ना? Either I drive, या तो मैं वहां पे ड्राइव करके जाऊंगा या मैं टैक्सी ले लूंगा। तो दो choices बताई गई हैं या दी जाती हैं। Neither nor is a pair indicates the exclusion of both elements. हमने eradicate करना है, दोनों elements को eliminate करना है कि ये भी नहीं और वो भी नहीं। Neither the teacher nor the students were aware of the surprise. कि neither nor ये हमारे pairs हैं, टीचर भी और स्टूडेंट्स को भी वो इस बारे में अवेयर नहीं थे, उनको अंदाजा नहीं था उस सरप्राइज के बारे में। तो दोनों को नहीं था। ठीक है, टीचर को भी नहीं पता था, स्टूडेंट्स को भी नहीं पता था। ऑलराइट, अच्छा, नॉट बट, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है पेयर? एम्फसाइज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज।
दो आइडियाज के दरमियान तजाद दिखाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट द एंड बट अ न्यू बिगिनिंग, इट्स नॉट द एंड बट अ न्यू बिगिनिंग। नॉट ये और बट यहां पे, नॉट हमेशा, नॉट पहले क्योंकि वो पेयर में पहले है, उसके बाद बट आएगा। इट्स नॉट द एंड, ये इख्तिताम नहीं है बल्कि एक नया आगाज है। तो एंड और बिगिनिंग, क्या ये दोनों ऑपोजिट आइडियाज हैं? एंड और बिगिनिंग, जी बिल्कुल, दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं आपस में। शुरू आखिर, पहला और आखिर, आखिर का। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें क्या करेंगे हम? adds emphasis to both elements. She is not only intelligent but also hard working. दोनों हमारे पास क्या चीजें हैं? दो एडजेक्टिव्स हैं। हमने बताना है कि वो सिर्फ ये नहीं है बल्कि ये भी है, सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। तो हम कहते हैं शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। Alright. Here are some more correlative conjunctions. You must note them down. Either or, no sooner than, not only but also, both and, whether or, neither nor. देखें, शाबाश, नोट कर लें। either or, no sooner than, not only but also. These are very important correlative conjunctions that we must learn about. Okay. Here are some more examples. Let's look at the first one. Both and. The farm has both beef and dairy cattle. कि फार्म में ये भी थी, ये बीफ भी था और डेयरी कैटल भी, तो दोनों इक्वल है। दोनों के ऊपर एम्फसाइज किया हमने, इसलिए हमने बोथ और एंड को इस्तेमाल किया। Either or, either dye or paints are used to color clothes. तो पेंट भी कर सकते हैं या डाई कर सकते हैं, तो दोनों में से एक कर सकते हैं, चॉइस है। नाइदर नॉर, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स केम बैक, कि वो भी वापस नहीं आए, उसके फ्रेंड्स भी वापस नहीं आए, दोनों निगेशन में चले गए, दोनों चीजें निगेट हो गई, दोनों की नफी कर दी हमने। वेदर और, आई डोंट नो वेदर ही इज अलाइव और डेड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, लव इज नॉट ओनली अ सेंटिमेंट बट ऑल्सो एन आर्ट, हार्डली व्हेन, ही हार्डली फ्लिंच्ड व्हेन ही वाज हिट। इसी तरह rather than, ये भी एक correlative pair है, correlative conjunction है, as so. So there are lot of different correlative conjunctions, जिसमें single correlative conjunctions भी आते हैं और compound वाले भी आते हैं। यहां पे आप examples देख सकते हैं। Both and, I will either go for a hike or stay at home and read a book. Jerry is neither rich nor famous. Rich भी नहीं था, famous भी नहीं था। He is not only intelligent but also very funny. कि वो सिर्फ अक्लमंद नहीं था, इंटेलिजेंट नहीं था, बल्कि वो बहुत फनी भी था। Would you rather go shopping or spend the day at the beach? Okay. Now, students, you can use correlative conjunctions to show relationship between ideas of equal importance. We use not only but also, both and to indicate an important idea. तो ये जो दो पेयर्स हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, वी डिड अ लॉट ऑफ साइट सीइंग, वी विजिटेड आवर रिलेटिव्स एज वेल। देखिएगा, not only did we not only we not only did we do a lot of sightseeing, but we also visited our relatives. देखें, not only but also, बीच में कोई वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन but also इसी तरह इस्तेमाल, but also एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दरमियान में कोई वर्ड भी आ सकता है, कोई प्रोनाउन को भी शामिल कर सकते हैं। तो दोनों चीजों के लिए आपने एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल कर दिया। ओके,
Here is a sentence for practice. Now let's see how well do you understand this. Please zoom in. Okay, sentence number 1. We need to use either or. हमारे पास prompt है, hint है, the game tonight we can arrange, go to the restaurant. दो choices हैं. किस तरह sentence बनेगा? Yes, the central. जी सर इधर आएगा। यस कहां पर एग्जैक्टली सर पहले इधर आएगा फिर और आएगा। ओके सेंटेंस को बनाइएगा सेंटेंस किस तरह बनेगा गेम टुनाइट इधर वी कैन आइदर अरेंज अ गेम टुनाइट और गो टू द रेस्टोरेंट ये ठीक है सर ओके नेक्स्ट वन लेट्स अनम्यूट किंगवे जी नॉट ओनली बट ऑल्सो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन बेटा हमने यूज करना है शी इज टैलेंटेड हार्ड वर्किंग इन हर स्टडीज ये आपके पास हिंट है किस तरह जुमले के अंदर आप नॉट ओनली बट ऑल्सो को लगाएंगे शाबाश कि वो टैलेंटेड है और हार्ड वर्किंग है अभी हमने पिछली स्लाइड्स में इसको देखा है काफी दफा शाबाश रिकॉल करें जी अल सईद एजुकेशन सिस्टम She is not only talented but also hardworking in her studies. यस देखें नॉट ओनली शी आपने जो कहा वो भी ठीक है उस तरह भी आप कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज कर सकते हैं और आप नॉट ओनली इज शी टैलेंटेड बट शी इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग इन हर स्टडीज इस तरह भी लेकिन तरतीब वही रहेगी बीच में एक दो वर्ड्स आ सकते हैं तरतीब वही रहेगी आइदर वी कैन अरेंज अ गेम टुनाइट और वी कैन गो टू द रेस्टोरेंट ओके नाउ आप इन कोरिलेटिव कंजंक्शंस को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे एज अ होमवर्क नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और नाइदर नॉर वेदर और बट नॉट बट एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो ये सेंटेंसेस आपने प्रैक्टिस करने हैं आपने इनके साथ सेंटेंसेस को बनाना है शाबाश ओके हियर इज अ स्टडी टिप that memorize the common correlative conjunction pairs and this can be a helpful reference when you encounter them in reading or need to use them in your writing. तो बेटा जब भी आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं कोई अखबार पढ़ रहे हैं एनी कॉलम मैगजीन जैसे ही आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन नजर आए आपने फौरन हाईलाइट कर लेना है उसे और उसको याद करना है ओके हियर इज अ क्लासरूम एक्टिविटी that you can do later on when you get the PPT. This is an additional classroom activity. A simulation link is added for you to watch and learn more. There is a worksheet regarding correlative conjunctions which I hope that you have got it and you're going to practice on this worksheet as much as you can. This is all about today's lecture, dear learners. Correlative conjunctions, practice them as much as you can. Learn about the conjunctions, their different types and especially correlative conjunctions. आप डिस्कवर करें कितने correlative conjunctions हैं जितने हमने देखे उनके अलावा आप कितने correlative conjunctions को डिस्कवर कर सकते हैं और उसको करेक्टली एग्जांपल के साथ लर्न करके यूज कर सकते हैं तो worksheet will be very helpful resource in this matter. Okay, if we have questions now before we wrap up. Okay, the central has raised their hand. जी शाहजहां कैंपस सर आप हमें अनम्यूट करते ही नहीं है सर आपको आपको 6 बार अनम्यूट 6 से 7 दफा अनम्यूट किया गया है जी बिल्कुल 2 दफा किया आपने अनम्यूट चलें ठीक है आपको नेक्स्ट टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी पे अनम्यूट करेंगे आप अपनी तरफ से अनम्यूट रखा कीजिएगा हम यहाँ से फौरन आपको अनम्यूट कर देंगे ओके अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर जी ये नो सोनर और देन का मतलब बता दें किस लिए जी यूज होता है
नो सूनर देन लेटर के ये टाइम के लिए, ठीक है, कि बहुत ही जल्दी, जल्दी से पहले, जब हम कहते हैं ना फौरन से पहले, नो सूनर देन लेटर, कि बहुत ही जल्दी उसने वो काम कर लिया, ठीक है। तो ये जल्दी को फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। आपने इसको प्रैक्टिस करना है, इसकी एग्जांपल्स ढूंढनी है आपने। ऑलराइट, थैंक यू सर। जब और जो हमारे पास है वो कोरिलेटिव में भी है और कोऑर्डिनेटिंग में भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोरिलेटिव में वो पेयर की शक्ल में आता है और दूसरे में सिंपल आता है, लेकिन अगर उन दोनों के ब्लैंक भी हो तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये कोरिलेटिव में आएगा या कोऑर्डिनेटिंग में? देखें, और दो चीजों की चॉइस के लिए है ना, ठीक है। डू यू वांट कॉफी और टी? हम बार बार इस मिसाल को देख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ताकि समझ आ गए। डू यू लाइक कॉफी और टी? आपको चॉइस दी गई, ठीक है, और सिंपल, ठीक है। लेकिन आइदर और में क्या फर्क है? आप दो चॉइस देते हैं, यहां पे मैंने पूछा और दे के, ठीक है, दैट इज योर चॉइस। बट उसको अगर हम ज्यादा एम्फसाइज करेंगे आइदर और के या तो ये या ये दोनों में से एक, तो किस लिए? एम्फसाइज करने के लिए, ज्यादा जोर देने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, ओके, एनीवन एल्स? ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ सर योरसेल्व्स, अल्लाह हम हाफिज। पॉइंट में कोरिलेटिव को नेगेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं।